We'll start today's webinar. My name is Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in cooperative housing societies and other societies also, and will benefit both the MC means managing committee members, and housing society members. Now, on behalf of all our participant friends, I invite today's speaker, Advocate Fatima Fauzdar. She practices in Mumbai and Pune and deals in all type of criminal, civil, and cooperative matters. She also does writ petitions in High Court, obtaining probate, letter of administration of will, drafting of will, gift deed, and various other agreements and contracts. Today, she will share her knowledge on various possibilities and legal remedies on today's topic, which is nominee rights, ट्रांसफर कैसे करते हैं, उसके कानून क्या हैं, और उसके बेसिक टू बेसिक प्रोसीजर्स क्या अपनाने पड़ते हैं नॉमिनी को भी और सोसाइटी को भी. On behalf of all our participant friends, we welcome Fatima ma'am and request to share her knowledge with all of us. Over to you, Fatima ma'am. Thank you, Hemant sir. And friends, today's topic would be a nomination in a housing society. I'll try to make it brief and crisp so that we have more time for the question answer sessions. So let us begin. Now, nomination in a cooperative housing society is subject to the cooperative societies, and this is limited to the Maharashtra state jurisdiction only. We are talking about the state of Maharashtra and the cooperative society and its rules and bylaws within the jurisdiction of the state of Maharashtra. And referring to section 30, read with rule 25, read with the model bylaws number 32 to 37 under the Maharashtra Cooperative Societies Act and rules. Now, this is related to, the nomination is related to the tenant ownership type housing societies registered under section 2, in bracket 16, read with rule 10, subsection 5 and A. Okay. Now, the key points that we need to understand in the nomination process is, तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं. ऑलरेडी इंग्लिश में तो हमने बता दिया है, थोड़ा शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं हिंदी में कि नॉमिनेशन जो है ये प्रोसेस महाराष्ट्र स्टेट ज्यूरिसडिक्शन के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में है उसको लेके आज की हमारी टॉपिक है. एंड सेक्शंस आपको बता देते हैं. सेक्शन 30 उसको रूल 25 के साथ रीड करना है और मॉडल बायलॉज नंबर हो गए 32 टू 37 एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स और रूल के अंतर्गत ये सारे सेक्शंस और सब सेक्शंस आते हैं और ये एप्लीकेबल है टेनेंट ओनरशिप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के लिए ओनली. दैट वुड बी सेक्शन 2(16) रेड विथ रूल 10 सबसेक्शन 5A. अभी इसमें कुछ थोड़े बहुत की पॉइंट्स है देयर. जो की पॉइंट्स है वो है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन नेम ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अ टाइटल ओनर कैन नॉट बी सोल्ड और रेंटेड, alienated or transferred or whatever on the basis of any nomination form. इसका मतलब है कि कोई भी immovable property जैसा कोई फ्लैट किसी भी इंडिविजुअल को हम लोग नॉमिनेशन के बेसिस पे ना ट्रांसफर कर सकते हैं, ना बेच सकते हैं, ना ही किसी को गिफ्ट कर सकते हैं. नॉमिनेशन फॉर्म खाली एक फॉर्मेलिटी है सोसाइटी के. अगर हम लोग देखा जाए तो इसका कोई रोल प्ले फ्लैट के पोजेशन में, ओनरशिप में या सेल करने में या गिफ्ट डीड में कहीं पर भी इसका इंपॉर्टेंस नहीं आता. ओके. और नॉमिनी को कोई लीगल राइट नहीं होता है टू सेल, बाय, रेंट और लीज और ट्रांसफर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज. फॉर एग्जाम्पल कोई फ्लैट ओनर अब नहीं रहे और कोई उसके अंदर नॉमिनेशन ऑलरेडी सोसाइटी को दिया हुआ है, तो the nominee has no right to sell it, rent it, transfer it, or do anything with that property under his designation as a nominee.
उसका रोल प्ले एक्चुअली ट्रस्टी का होता है। ट्रस्टी कौन होता है? जो सिर्फ देख रेख करता है। देख रेख का मतलब है कि ही विल ओनली टेक केयर टू एंश्योर कि जो प्रॉपर्टी एक्चुअल लीगल एस कौन है, उसके उसके बच्चे हैं, उसके माता पिता है, या कोई और है, या कोई विल है जो डिसीज एज अ टेस्टेटर बना के गए हैं। तो ये सारी भागदौड़ नॉमिनी को करना पड़ता है टू एंश्योर दैट द प्रॉपर्टी गोज इन द राइट हैंड्स। दैट इज द ओनली रोल प्ले ऑफ अ नॉमिनी विच हैज टू बी कैरिड आउट विद ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट। अभी हम देखते हैं नॉमिनेशन फॉर्म एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट नहीं है। मतलब कोई लोग क्या सोचते हैं कि नॉमिनेशन फॉर्म ही विल होता है, बट इट इज नॉट लाइक दैट। नॉमिनेशन फॉर्म इज नॉट अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट and cannot be taken as the last testamentary will of wish of the deceased irrespective of any criteria। मतलब कोई भी हो वो ये नहीं कह सकता है कि ये जो नॉमिनेशन है यही विल है, इसको ही आप एक टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट की तरफ ट्रीट कीजिए और इसके अंदर जो लिखा हुआ है उससे आप आगे की कार्रवाई प्रोसेस कीजिए। सोसाइटी को भी हम लोग ऐसा नहीं कह सकते। अगर सोसाइटी इस फॉर्म के ऊपर कोई भी एक्शन लेता है तो दैट विल बी अ क्रिमिनल फ्रॉड एंड फॉर्जरी। अब ये थोड़े बहुत है की पॉइंट्स है जो हम लोग को पहले तो समझना चाहिए नॉमिनेशन को लेके बिफोर वी गो इनटू द लीगैलिटी। मतलब लीगल पॉइंट समझने के पहले कुछ कुछ जो की पॉइंट है वो हमने पहले बता दिया। अब हमको देखना है कि हु कैन बी अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। पहले तो सोसाइटी का मेंबर कौन हो सकता है? ओनली द पर्सन हु हैज द टाइटल डीड, यानी जिसके पास जो ओनरशिप है, जिसका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुआ है, जिसके नाम पे रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हुआ है, वो ही इंसान एज अ मेंबर कैन बी एडमिटेड टू द सोसाइटी एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। दैट इज इन अ टेनेंट ओनरशिप सोसाइटी। टेनेंट ओनरशिप सोसाइटी मीन्स वेयर दैट फ्लैट कैन बी रेंटेड आउट ऑन अ टेनेंसी बेसिस। अब ड्यूली एडमिटेड मेंबर मीन्स कि जो सोसाइटी जब मेंबर को एडमिट करती है ओनली व्हेन ही हैज अ टाइटल ओनरशिप ऑफ द फ्लैट, डॉक्यूमेंट विच हैज अ रजिस्टर्ड सेल डीड और गिफ्ट डीड और अ कोर्ट डिक्री। मतलब अगर सपोज कोई कोर्ट डिक्री है किसी इंसान के पास रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लैट, ओनली देन दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ पर्सन हु कैन बी अ मेंबर ऑफ अ सोसाइटी। अ नॉमिनी कैन नॉट बी अ टाइटल ओनर एंड कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी नहीं हो सकती। इन अ टेनेंट ओनरशिप टाइप सोसाइटी जब पर्सन जिसका नाम परचेस अग्रीमेंट में लिखा होता है एज द सोल जॉइंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ओनली उसी के नाम पे भी शेयर सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 219 ए एंड बी रेड विद सेक्शन 227 सबसेक्शन 2 और जिसका नाम आई और जे रजिस्टर में और शेयर रजिस्टर में सोसाइटी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, बस वही प्रोसीजर हम लोग लॉ के हिसाब से फॉलो करेंगे। अभी टाइप ऑफ मेंबरशिप सोसाइटी में टाइप ऑफ मेंबरशिप क्या होती है? एक ऑर्डिनरी मेंबर होता है, एसोसिएट मेंबर होता है, नॉमिनल मेंबर होता है और एक्टिव मेंबर होता है। तो ये चार, एक पहले भी एक सिंपैथाइजर मेंबर हुआ करता था लेकिन अभी वो रिपील हो गया है, अभी वो बिल्कुल भी लागू नहीं है। तो हमारे के पास चार टाइप ऑफ मेंबरशिप है। ऑर्डिनरी मेंबरशिप दैट इज प्राइमरी मेंबरशिप, एसोसिएट मेंबर, नॉमिनल मेंबर और एक्टिव मेंबर। ऑर्डिनरी मेंबर मीन्स द फर्स्ट मेंबर जिसके नाम पे टाइटल है, यानी कि जो फ्लैट ओनर। एसोसिएट मेंबर मीन द सेकेंड टाइटल ओनर हु हैज ज्वाइंटली और ड्यूली परचेस्ड द फ्लैट अलॉन्ग विद द फर्स्ट टाइटल। फॉर एग्जाम्पल अगर मिस्टर ए और मिसेज बी, मिसेज ए एंड मिसेज ए, मिस्टर ए एंड मिसेज बी, ए ने खरीदा है तो ये दोनों एक फ्लैट ओनर विल बी द मेन मेंबर and his wife will be the associate member। फिर नॉमिनल मेंबर, नॉमिनल मेंबर के ऊपर हम थोड़ी देर में बात करते हैं बिकॉज दैट इज टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन। अभी मेंबर बनते हैं एक्टिव मेंबर है, वो मेंबर है जो टेनेंट का टेनेंसी ओनरशिप सोसाइटी में एक फ्लैट ओनर है। वो मेंबर हमेशा ही एक्टिव मेंबर रहता है फ्रॉम द डेट ही हैज परचेज द प्रॉपर्टी बिकॉज ही समवे और द अदर ही इज एक्टिव इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस और अदर चार्जेस ऑफ द सोसाइटी, तो वो हो जाते हैं एक्टिव मेंबर। अब हम लोग आते हैं जो मेन टॉपिक है हम लोग का आज का डिस्कशन का, दैट इज नॉमिनल मेंबर। ओके, नाउ हु इज अ नॉमिनल मेंबर? नॉमिनल मेंबर हैज बीन नॉमिनेटेड वाया प्रिस्क्राइब मॉडल बाय लॉ। एक फॉर्म होता है नॉमिनेशन फॉर्म नंबर 40। ये फॉर्म हम लोग जब भरते हैं, ओके, और जस्ट अ मोमेंट, फॉर्म नंबर
11 or 27 under the leave license tenancy or the representative of any cooperative juris body. Nominal member has no privileges and rights as granted to a registered member. मतलब नॉमिनल मेंबर के राइट्स लिमिटेड होते हैं. जो राइट ओनर को होता है वो राइट नॉमिनल मेंबर को नहीं होगा. नॉमिनल मेंबर कभी भी टाइटल ओनर नहीं होगा. राइट्स ऑफ ओनरशिप उसके पास कभी भी नहीं होंगे क्योंकि वो नॉमिनल मेंबर है और ना ही वो रजिस्टर्ड ओनर रहेगा टाइटल डीड के ऊपर. देयर आर मेनी डिटेल्स अबाउट नॉमिनी, हु कैन बी अ नॉमिनी, हु कैन नॉट बी अ नॉमिनी. तो हम लोग ये सब इंटीग्रिटीज में नहीं जाएंगे. बेसिकली नॉमिनी का क्या रोल प्ले है सोसाइटी में, उसका सोसाइटी के ओनर के साथ उसके क्या ऐसा एसोसिएशन होता है जिससे वो सोसाइटी में उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा बहुत होता है एज अ लीगल एंटिटी ऑफ द टाइटल ओनर. वो हम लोग ज्यादा उस पर ध्यान देंगे. Now, who can be nominated or who can be a nominee? Any bona fide Indian citizen can be nominated, but only by the title owner of the property. मतलब नॉमिनी कोई भी हो सकता है, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा उसको? जो फ्लैट ओनर है. अगर ए फ्लैट ओनर है तो ए को ही राइट होगा कि वो नॉमिनी अटेंड करे. सोसाइटी ऐसे नहीं बोल सकती है कि भाई हम लोग तुम्हारे लिए नॉमिनी अपॉइंट करेंगे. ऐसे नहीं होता. फ्लैट ओनर ही नॉमिनी अपॉइंट करेगा. A legal heir beneficiary can be nominated. मतलब जो सपोज ए का फ्लैट है वो उसके लड़के को नॉमिनी बना के, जो लीगल हेयर भी है और बेनिफिशियरी भी है, उसका क्लास 1 हेयर होने के नाते उसको भी नॉमिनी बना सकते हैं. देन अ नॉन इंडिविजुअल पर्सन मीन्स अ रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी और अ ज्यूरिस पर्सन. फॉर एग्जाम्पल कोई लीगल एंटिटी है, कोई लीगल फर्म है, उसको भी वो फ्लैट ओनर एक नॉमिनी बना सकता है टू कैरी आउट हिज duties as assigned to him by the flat owner. A minor or a physically disabled person can also be nominated, but that would be provided under the, it would be have to be assisted by a guardian. If it is a minor, there will be a guardian also that will be appointed with the minor to carry out this duty. Any person who is walking on the road or any layman person can be appointed as a nominee if the flat owner thinks कि ये बंदा मेरा नॉमिनी बनने के लिए बरोबर है, मेरे राइट्स और ड्यूटीज प्रोटेक्ट कर सकता है और आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन. एनी पर्सन कैन बी मेड अ नॉमिनी. नाउ हु कैन नॉट बी नॉमिनेटेड, उसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि कौन नॉमिनी नहीं हो सकता है. डिसीज पर्सन कैन नॉट बी नॉमिनेटेड. मतलब सपोज ए का फ्लैट है तो वो अपने पेरेंट्स जो अब इस दुनिया में नहीं रहे कैन नॉट बी मेड एज अ नॉमिनी. ओके, जस्ट बिकॉज दे वर हिज पेरेंट्स. अ नॉन इंडियन सिटीजन जैसे एनआरआई है जो फॉरेन में रहता है कैन नॉट बी नॉमिनेटेड. एंड अ नॉमिनी कैन नॉट नॉमिनेट हिमसेल्फ. मतलब अगर ए ने नॉमिनी बनाया है तो ए नॉमिनी और किसी को नॉमिनी नहीं बना सकता है. अब आते हैं सोसाइटी के रोल प्ले पे. सो व्हेन कैन सोसाइटी रजिस्टर अ नॉमिनेशन फॉर्म? Society has to compulsorily and mandatorily register a duly eligible and legible nomination form when received from a living individual person. मतलब living individual person means a clear title owner person जिसके पास से वो nomination form ले सकते हैं. And he should be a bona fide member of the society. Society cannot register a nomination form received from anybody after the demise of the member. For example, अगर मिस्टर ए फ्लैट ओनर है और ए अब इस दुनिया में नहीं रहे तो उनका कोई रिलेटिव ले जाके सोसाइटी को नॉमिनेशन फॉर्म कि बाबा देखो ये नॉमिनेशन फॉर्म ए ने हमको दिया था, ये अभी आप रख लो. नहीं, ऐसा सोसाइटी फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए और इट इज इलीगल टू एक्सेप्ट सच फॉर्म्स. अ सोसाइटी कैन नॉट रजिस्टर अ नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव फ्रॉम अ नॉमिनी इवन इफ द नॉमिनी इज अ लीगल हेयर और अ बेनिफिशियरी. सपोज ए ने अपने लड़के को नॉमिनेशन किया है और लड़का क्या करता है, उसके फ्रेंड को नॉमिनेट कर देता है. बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं मेरे फ्रेंड को नॉमिनेट करता हूँ. वो नहीं कर सकता है. ही हैज टू एग्जीक्यूट द रोल एंड टास्क गिवन टू हिम बाय हिज फादर हु इज द फ्लैट ओनर हिमसेल्फ ओनली. ही कैन नॉट रीनॉमिनेट समबडी एल्स. It would be a collective criminal offense by all the managing committee members if the society registers and further transfers membership on any application or document given by the nominee. अगर नॉमिनी जाके कोई भी डॉक्यूमेंट देता है सोसाइटी को और बोलता है कि ये आप दो, इसका ट्रांसफर कर दो, ये इसके नाम पे कर दो, तो अगर सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करके कुछ भी करता है तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड दे वुड बी लायबल फॉर प्रोसिक्यूशन.
or even if the managing committee provides any type of no objection certificate to a nominee for change of name or transfer of electricity meter, gas meter, पासपोर्ट, राशन कार्ड, मतलब अगर सोसाइटी ने नॉमिनी को कोई एनओसी भी इशू किया without the knowledge of the flat owner who has appointed the nominee, it would be a gross negligence on the part of the society and it would be treated as a criminal offense. अब मॉडल बायलॉज में हम लोग को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है कैसे नॉमिनेशन फॉर्म को प्रोसेस करते. पहले तो क्या करना चाहिए कि सोसाइटी को कि 3 ओरिजिनल कॉपीज ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म्स बायलॉज के अंदर फॉर्म नंबर 14 ड्यूली फिल्ड from the registered member. So 3 copy of the form filled by the registered owner of the flat or the member of the society, वो form number 14 भरना है. Duly express society secretary manager acknowledges receipt of the first 2 nomination forms, original and duplicate, and returns back the third triplicate form to the after fixing the society's rubber stamp, date, मैनेजर का सिग्नेचर लेके वो थर्ड कॉपी वापस रजिस्टर्ड ओनर को दे देते हैं और 2 कॉपी अपने पास रखते हैं. तो क्या होता है 3 फॉर्म भरने हैं, 3 कॉपीज भरने हैं फॉर्म नंबर 14 के ट्रिप्लीकेट में, और वो तीनों फॉर्म ले जाके सोसाइटी के ऑफिस में सेक्रेटरी या मैनेजर को हैंड ओवर करना है. सेक्रेटरी क्या करेगा, 2 फॉर्म रिटेन करेगा, एक फॉर्म पे अपना अटेस्ट एक्नॉलेजमेंट देके वो वापस रजिस्टर्ड मेंबर को रिटर्न करेगा. फिर नेक्स्ट मैंडेटरी जो मैनेजिंग कमिटी मीटिंग होगी, the secretary or committee members must deliberately check the nomination form for any irregularities and then approve and record the nomination form in the managing committee minute book. उसके बाद सोसाइटी क्या करेगा, जब मीटिंग होगा उसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म को उठाएगा, उसको स्टडी करेगा कि इट इज एक्यूरेट इन एवरी वे, देयर इज नो डिस्क्रिपेंसी, और उसके बाद उसको नॉमिनेशन फॉर्म को कमिटी की मिनट्स बुक में रिकॉर्ड करेगा. उसके बाद 7 दिनों के अंदर बेस्ड ऑन द अप्रूवल रेजोल्यूशन recorded in the meeting in the mandatory nominal registration और सीरियल नंबर वगैरह उसके ऊपर अपडेट करने के बाद सेक्रेटरी का साइन, सोसाइटी का रबर स्टैम्प होने के बाद उसके बाद ये एंट्री होगा नॉमिनेशन रजिस्टर में, भी इसका एंट्री होना बहुत जरूरी है. मैनेजर इज नॉट अलाउड टू साइन और परमिटेड टू साइन ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म. अभी सीरियल नंबर एंड कंटिन्यूइंग यूनिक सीरियल नंबर ऑफ द नॉमिनेशन रजिस्टर इज, अगर देर इज एनी मैनिपुलेशन, ये जो नंबर्स होते हैं सीरियल होते हैं 1 to 3 में, जैसे जैसे नॉमिनेशन फॉर्म आते हैं वैसे वैसे रजिस्टर में नंबरिंग दिए जाते हैं. अगर इसमें कोई भी तरह का मैनिपुलेशन होता है इन एनी मैनर, देन दैट वुड मीन दैट देर इज मटीरियल ऑल्टरेशन एंड इट वुड बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल फॉर forgery, cheating and breach of trust. So all these sections under the Indian Penal Code 1860 would be made applicable to the managing committee in case there is any alteration in the nomination form or in the register of the nomination as provided in the record of the society. अब सोसाइटी का सेक्रेटरी क्या करेगा, he records the continuing and the unique serial number of the nomination register on the first and second copy of the original nomination form. उसके बाद सेक्रेटरी फर्दर रिकॉर्ड्स द रेजोल्यूशन मेंबर, डेट फ्रॉम द मैनेजिंग कंपनी मिनट बुक प्लस सोसाइटीज रबर स्टैम्प, सेक्रेटरी का सिग्नेचर और फर्स्ट एंड सेकंड कॉपी ऑफ द ओरिजिनल नॉमिनेशन फॉर्म, इसको सबको अपडेट करेगा नॉमिनेशन रजिस्टर में. उसके बाद obtains the member's signature on the first original nomination form and returns the second original nomination form to the member who has made the nomination for his record and preservation purpose. So क्या होता है, 3 फॉर्म आते हैं सोसाइटी के पास. फर्स्ट 2 फॉर्म सेक्रेटरी रिटेन करता है, थर्ड फॉर्म साइन करके रिटर्न करता है. उसके बाद ये 2 फॉर्म मीटिंग में पुटअप होते हैं, उसके बाद नॉमिनेशन रजिस्टर में अपडेट होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उस पर सीरियल नंबर वगैरह से एंट्री होती है और रजिस्टर रबर स्टैम्प वगैरह सोसाइटी का होने के बाद वो सब सेक्रेटरी का सिग्नेचर होने के बाद वो कॉपी में से सेक्रेटरी क्या करता है, फर्स्ट ओरिजिनल कॉपी अपने पास रिटेन एंड रिटर्न द सेकेंड कॉपी. तो फर्स्ट कॉपी सोसाइटी अपने रिकॉर्ड के लिए रिटेन करता है और सेकेंड कॉपी ओरिजिनल मेंबर को वापस रिटर्न कर देता है फॉर हिज प्रिजर्वेशन एंड रिकॉर्ड. और ये जो फर्स्ट कॉपी है, इट इज परमानेंटली ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सोसाइटी फॉर फ्यूचर रेफरेंस पर्पस
and it is utmost confidence. मतलब ये कॉन्फिडेंशियल भी डॉक्यूमेंट होता है और कॉन्फिडेंस में सोसाइटी के रिकॉर्ड्स में मेंटेन किया जाता है. और ये सारा प्रोसीजर होने के लिए टाइम का जो शेड्यूल है वो है 2 महीने. 2 महीने के अंदर सोसाइटी को और मेंबर को ये सारी प्रोसीजर पूरी करनी होती है. फेलियर ऑफ विच द सोसाइटी एंड द सेक्रेटरी बिकम लायबल फॉर नेग्लिजेंस and deficiency under the Consumer Protection Act, and all the managing committee members for the collectively liable under criminal laws. मतलब 2 महीने के अंदर ये नॉमिनेशन प्रोसेस अगर सोसाइटी कंप्लीट नहीं करती है तो दे आर लायबल अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विसेज एज वेल एज अंडर द क्रिमिनल लॉज फॉर प्रोसिक्यूशन. ये जो नॉमिनेशन रजिस्टर है और वो जो ओरिजिनल नॉमिनेशन फॉर्म है is preserved lifelong in the society's record, failure of which would imply and invite criminal prosecution subject to certain parameters. मतलब ये ऐसा नहीं है कि बस जब तक कमिटी है तब तक रखो, कमिटी चेंज हो गई तो फॉर्म भी निकाल दो. जी नहीं, कमिटी आती जाती रहेगी लेकिन ये फॉर्म परमानेंटली सोसाइटी के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड रहेगा. कोई भी कमिटी जो उसके बाद इलेक्टेड होगी ऑल्सो दे विल नॉट टैम्पर विद दीज डॉक्यूमेंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन मेंटेन्ड बाय द प्रीवियस कमिटी. द नॉमिनेशन रजिस्टर एंड नॉमिनेशन फॉर्म shall not be mutilated, altered, modified under any circumstances without the written approval of the cooperative registrar, that too following the procedure of law. मतलब अगर उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं तो दिस मैटर हैज टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटी, and that too only after following a certain process of law would these be changes be made applicable as advised by the registrar. और जो फॉर्म है, अगर चलो बाजू वाला फ्लैट ओनर जाके बोलता है कि बाबा ए वाले ने आपको नॉमिनेशन फॉर्म दिया है, उसका मुझे एक फोटोकॉपी दे दो, सॉरी, कॉपी ऑफ द ओरिजिनल नॉमिनेशन फॉर्म from the society record shall not be given to anybody under any circumstances, failure of which would imply and invite क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स. सो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी मेंटेन करना चाहिए. और ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया और मांग लिया कि भाई हमको दे दो, इसका ही फोटोकॉपी लेते हैं मोबाइल पे. नो, इट वुड बी, अगर किसी को पता चलता है, अगर ए की नोटिस में आता है, इट इज टोटली रॉन्ग. ओके, अब हम लोग आते हैं कि व्हाट द सोसाइटी शुड नॉट डू. सोसाइटी का भी कुछ कर्तव्य होता है जो नॉमिनेशन फॉर्म को के सिलसिले में होता है, तो हम लोग वो देखते हैं कि सोसाइटी ने क्या करना नहीं चाहिए. द सोसाइटी इन ऑल मैनर इज बाउंड टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स विदाउट एनी एक्सेप्शन. मतलब सोसाइटी के मेंबर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना मैनेजिंग कमेटी और सोसाइटी का प्राइम कर्तव्य है, हर समय और हर कीमत पर, बिकॉज दे हैव बीन अपॉइंटेड फॉर दैट. अगर हम लोग किसी को इतना ट्रस्ट से रिक्रूट करते हैं कि भाई आप इस पोजीशन पे बैठो, तो उनका वही कर्तव्य होता है कि सारे मेंबर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें. पर्टेनिंग टू द डिसीज मेंबर, मतलब इवन इफ दैट मेंबर इज नॉट अलाइव, द मेंबर सपोज वो गुजर जाते हैं और उनका फ्लैट है, प्रोटेक्टिंग द डिसीज मेंबर्स प्रॉपर्टी एंड फ्लैट is also the prime duty of the society, and the society will not make any changes in the I and J register, share certificate register, in the society records, the society bill of the deceased members, मतलब जो नाम पे बिल जाता है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा. not to give any type of NOC to any nominee, not to record name of nominee by replacing name of the deceased member on the society records. मतलब सोसाइटी ऐसा नहीं कर सकती कि चलो डिसीज मेंबर का नेम निकाल दो और अभी वो नहीं रहे और नॉमिनी का नेम लगा दो, नहीं कर सकते. नॉट टू अलाउ नॉमिनी ऑन बोर्ड ऑफ मैनेजिंग कमिटी, नॉट टू अलाउ नॉमिनी टू कॉन्टेक्ट एनी वोट और कॉन्टेक्ट एनी सोसाइटी इलेक्शन, नॉट टू अलाउ नॉमिनी टू अटेंड प्रपोज रेजोल्यूशन इन द सोसाइटीज जनरल बॉडी मीटिंग. तो ये सब सोसाइटी हैज टू फॉलो दिस इन अ वेरी स्ट्रिक्ट मैनर. अगर सपोज बाय मिस्टेक नॉमिनी को मेंबर ऑफ द सोसाइटी बना दिया जाता है, इफ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके, तो क्या होता है लीगली. दिस इज अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी. मोर और सिंस एज अ नॉमिनी राइट इन द डिसीज प्रॉपर्टी एंड कैन नॉट हैव एनी राइट in the administrative or management functions of the society.
इसका मतलब क्या होता है कि अगर सोसाइटी गलती से कर भी देता है तो ये बात सोसाइटी को भूलनी नहीं चाहिए कि द नॉमिनी के पास कोई भी लीगल राइट्स नहीं होते हैं. द नॉमिनी हैज नो टाइटल ओनरशिप राइट over the deceased title member property flat since he is not liable in any possible manner for any civil liability or claim any auction or attachment proceeding whatsoever. सोसाइटी नॉमिनी अपने आप को चेयरमैन सेक्रेटरी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के ऊपर भी रिक्रूट नहीं कर सकता है. अब हम लोग आते हैं नॉमिनेशन बाय जॉइंट ओनर्स और जॉइंट मेंबर्स. Nomination by joint owners means when Mr. A and Mrs. A are the joint owners or the joint members of a cooperative housing society. तो nomination कैसे होता है? A single nomination form executed by joint members and joint holders is null and void and legally not enforceable. Each joint title owner must fill a separate nomination form for his own share or ratio. अब जब सोसाइटी में जब जॉइंट ओनरशिप होता है तो शेयर भी डिवाइड हो जाते हैं 50-50%. तो दोनों अपने अपने नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं. इफ देर आर 2 जॉइंट टाइटल होल्डर्स होल्डिंग 50% शेयर रेशियो ओनरशिप प्रॉपर्टी देन ईच जॉइंट टाइटल ओनर शुड फिल सेपरेट नॉमिनेशन फॉर्म फॉर हिज ओन शेयर रेशियो, जैसे कि अभी हमने जस्ट बताया. द नॉमिनेशन फॉर्म कैन बी एग्जीक्यूटेड फुल्ली ओनली एंड नॉट पार्टली. हेंस अगर एक सिंगल नॉमिनेशन फॉर्म एग्जीक्यूटेड हुआ है जॉइंट ओनर से देन नॉमिनेशन फॉर्म कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली आफ्टर डेथ ऑफ बोथ द जॉइंट होल्डर्स. इफ वन ऑफ द जॉइंट होल्डर expires then the nomination form cannot be partly executed. Similarly, single nomination form executed by joint holders cannot be changed or refiled by a single title owner. For example, एक बताते हैं. राम समझो A और Mr. B is holding 50% of the flat. Hence, A and B can nominate only for his ratio of the flat of 50% share. If Mrs. B is holding 50% share of the flat, then B can nominate only her ratio of the 50%. Each can nominate to whomever they wish, even to you or me. Okay. अब सोसाइटी फॉर्म है क्या कैंसिल हो सकता है? तो अब ये शॉर्ट में हम लोग वो भी देख लेते हैं. द मैनेजिंग कमिटी बीइंग द लॉफुल बाउंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ द सोसाइटी अंडर द पैरामीटर्स ऑफ सेक्शन 71 of the Maharashtra Cooperative Society Act may sue Muto on his own record, may cancel a nomination form in the following circumstances. मतलब किस वक्त और किस पीरियड में नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल हो सकता है? अगर नॉमिनेशन फॉर्म कोई मेंबर की तरफ से नहीं आया है तो कैंसिल हो सकता है. अगर नॉमिनी ने ही नॉमिनेशन फॉर्म दिया है तो है. और अगर कोई nomination form received from a non-individual, means a registered legal entity which has not been appointed by a registered owner, then it can be cancelled. अब nomination का पर्पस क्या है? एंड रिजल्ट पे आते हैं कि नॉमिनेशन का पर्पस क्या है. नॉमिनेशन का पर्पस होता है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लैट ओनर इज प्रोटेक्टेड. इट मीन्स दैट द सोसाइटी हैज टू डिसाइड एज टू हु शैल बी लायबल फॉर पेमेंट ऑफ द सोसाइटी. मतलब अगर कोई नॉमिनी है और फ्लैट ओनर नहीं रहा तो in that case who will pay the maintenance charges till the society comes to know कि actually legal है कौन है, कौन ये फ्लैट का एक्चुअल हकदार बनेगा. जब तक ये पता नहीं होता है तो there is somebody who will be in charge of making this payment to the society. So that these are all the reasons that the nomination form has to be accepted. In all, if we'll go to see the conclusion of what is the reason of a nomination form in cooperatives, there is not much of legal entity in this. As far as passing on the title ownership or the deceased property to anybody, it is only as a legal entity having a trust, as a legal entity having the trust to safeguard the interests of the member, this nomination form is filled. Hemant sir. So friends, I pass it on to Hemant sir to continue with the amendment, and later on we'll take down the question and answer session, and whatever has been left on, we'll conclude it in that. Thank you so much for being so patient. Thank you. ओके फ्रेंड्स, अभी एमसीएस एक्ट, महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, जुलाई 2019 में एमेंड हुआ है. तो फातिमा मैम ने जो बोला उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए हुए सरकार ने. तो आई विल जस्ट
ब्रीफ यू वेरी वेरी शॉर्टली अलॉन्ग विद द सेक्शन नंबर सो दैट आपको सेक्शन भी पता चल जाए कि क्या है। अभी सेक्शन 154B इंट्रोड्यूस हुआ है एमसीएस एक्ट में जुलाई 2019 में। तो उसके अंदर सेक्शन 154B(1) सब सेक्शन 18 में ये डिसाइड किया है कि प्रोविजनल मेंबर जो है, मतलब नॉमिनी मेंबर को अभी प्रोविजनल मेंबर का दर्जा दिया गया है। तो अब नॉमिनी मेंबर फुल फ्लेज्ड मेंबर बन सकता है प्रोवाइडेड देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू इट। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये हुआ है कि एडमिट होने के बाद में प्रोविजनल मेंबर को एडमिट कर लिया प्रोसेस के साथ में। प्रोसेस मीन्स उसका फॉर्म ले लिया, उससे इंडेमनिटी बॉन्ड ले लिया वगैरह वगैरह। मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में अप्रूव कर दिया। ये देखना है कि वे पुराना जो ओरिजिनल मेंबर था उसने इसी को नॉमिनेट किया है या नहीं है। इसी के नॉमिनेट किया तो वो लेटेस्ट फॉर्म है या नहीं है, क्योंकि अगर एक व्यक्ति है वो हर 3-3 महीने में अपना नॉमिनेशन फॉर्म अपडेट कर सकता है। देयर इज नो स्टॉपिंग टू दैट। मतलब है कि जनवरी महीने में आप एक नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकते हो, फिर जुलाई महीने में फिर से फाइल कर सकते हो, दिसंबर महीने में फिर से फाइल कर सकते हो, दिसंबर 30 तारीख को फिर से फाइल कर सकते हो। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप कितनी बार एक नॉमिनेशन फॉर्म फाइल कर सकते हो। बायलॉज के हिसाब से नॉमिनेशन नया फाइल करने के टाइम पे आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा फीस देना होता है सोसाइटी को। दैट इज अंडर द बायलॉज। नथिंग इज रिफ्लेक्टेड। सेक्शन में कहीं नहीं प्रिस्क्राइब है, लेकिन बायलॉज के अंदर ये प्रिस्क्राइब है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रोविजनल मेंबर यानी नॉमिनी मेंबर जिसको प्रोविजनल मेंबर बना दिया जाता है, वो एक फुल फ्लेज्ड मेंबर है। फुल फ्लेज्ड मेंबर का मतलब है अब वो हर चीज वो कर सकता है जो नॉर्मली ओरिजिनल मेंबर कर सकता था, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 पॉइंट्स विच आई विल एक्सप्लेन। सो प्रोविजनल मेंबर कौन है? जिसको सोसाइटी ने एडमिट किया है आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर, मतलब जो ओरिजिनल मेंबर है उसके गुजर जाने के बाद में, और अगर उसने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किया हुआ है तो उसे प्रोविजनल मेंबर करके एडमिट कर दिया जाता है। अब नॉमिनी का एडमिटेंस के भी कुछ रूल है सोसाइटी के अंदर जो दर्शाया गया है, डिस्क्राइब किया गया हुआ है या बताया गया हुआ है 154B सबसेक्शन 7 के अंदर। 154B-7 के अंदर में ही लिखा हुआ है कि अगर उस पर्टिकुलर फ्लैट का, जिस फ्लैट का क्लेम वो नॉमिनी मेंबर कर रहा है, उस फ्लैट का सारे ड्यूज भरे होने चाहिए। ड्यूज मतलब आउटस्टैंडिंग ड्यूज, उसका कोई भी ड्यूज आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, तो ही उसे नॉमिनी मेंबर यानी प्रोविजनल मेंबरशिप ग्रांट हो सकता है। जो नॉमिनी है प्रॉपरली एप्लीकेशन दे के मेंबरशिप के लिए एप्लीकेशन देता है। 100 रुपए का फीस भरना होता है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड एज ए मेंबरशिप एंट्रेंस फीस। और दूसरा एक और भी फीस भरना होता है जिसके कहते हैं मेंबरशिप ट्रांसफर फीस। इसमें शेयर ट्रांसफर प्रीमियम जो 25,000 रुपए का प्रिस्क्राइब्ड है वो भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेंबरशिप एंट्रेंस फीस 100 रुपया वाला वो भरना है, क्योंकि आप नया मेंबर एंट्री करोगे अपने आईजे रजिस्टर में। साथ में मेंबरशिप ट्रांसफर फी, मतलब डिसीज्ड मेंबर से मेंबरशिप ट्रांसफर कर रहे हो नॉमिनी मेंबर को यानी प्रोविजनल मेंबर को, तो ये 2 फीस देने हैं। सोसाइटी का आउटस्टैंडिंग ड्यूज पूरा करना है। और अगर वो सोसाइटी महाडा की जैसे सोसाइटी है या सिडको जैसी सोसाइटी है, एसआरए जैसे सोसाइटी, तो उनका जो कानून है, उनका कानून के हिसाब से उनका एनओसी लेना है। सिडको का एनओसी लेना है या तो महाडा का लेना है वगैरह वगैरह, तो ही ये ट्रांसफर हो सकता है प्रोविजनल मेंबरशिप, अदरवाइज इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अभी व्हाट इज द राइट ऑफ प्रोविजनल मेंबरशिप? पहले ये कानून नहीं था जो मैडम ने बताया। पहले ये कानून था कि नॉमिनी मेंबर को ट्रांसफर कर दिया तो वो कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता इलेक्शन वगैरह वगैरह। लेकिन अब 154B(11) सबसेक्शन 3 में प्रोविजनल मेंबर को पूरा राइट दे दिया। मीन्स बिकॉज जैसे मैंने ऊपर बताया आपको कि वो एक फुल फ्लेज्ड मेंबर बन जाता है 154B(18) के अंतर्गत में। और ये 154B(11-13) के अंतर्गत में
प्रोविजनल मेंबर को कमिटी का इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार है, उसे वोट डालने का भी अधिकार है, वो मैनेजिंग कमेटी मेंबर भी बन सकता है, वो एजीएम भी अटेंड कर सकता है, एसजीएम भी अटेंड कर सकता है, मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग भी अटेंड कर सकता है। ये प्रोविजनल मेंबर को कंप्लीट राइट है टू डू एवरी एक्टिविटी दैट एन ओरिजिनल मेंबर कुड हैव डन। तो अगर ओरिजिनल मेंबर आपसे सोसाइटी के मेंबर से इस कारण से लड़ सकता है या उस कारण से लड़ सकता है या कोर्ट में एक मैटर फाइल कर सकता है, वो सारे अधिकार इस प्रोविजनल मेंबर को दिए गए हैं। अभी इसमें एक छोटा सा त्रुटि है, तुर्रा है, कंडीशन है कि सोसाइटी विल ट्रांसफर द शेयर, टाइटल, इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड इन द सोसाइटी। मेंबर का जो प्रॉपर्टी है वो क्या चीज है? मेंबर का प्रॉपर्टी, उसका फ्लैट है, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर में जाता है। लेकिन जब यहाँ पे ये वाला क्लॉज आता है, शेयर, राइट, टाइटल इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटीज प्रॉपर्टी, तो सोसाइटी का प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? 250 रुपया वाला या 500 रुपये वाला शेयर सर्टिफिकेट, वही आपको सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है। आपका फ्लैट नॉमिनी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। इसीलिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि, अब मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूं, बाद में हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। प्रोवाइडेड दैट द सोसाइटी शैल एडमिट ए नॉमिनी एज ए प्रोविजनल मेंबर आफ्टर डेथ ऑफ ए मेंबर टिल लीगल हायर्स or a person who is entitled to the flat and shares in accordance with the succession law. Succession law means अलग अलग succession law है, पारसीज के लिए अलग से लॉ है, हिंदू में ही आते हैं पर फिर भी उनका छोटे मोटे अलग से लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मोहम्मदन लॉ है, ए बिट ऑफ डिफरेंस इन द क्रिश्चियन लॉज ऑल्सो, वो लॉ का भी ध्यान रखते हुए अभी हिंदी में अनुवाद करने के लिए सोसाइटी नॉमिनी जिसको प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसके नाम पे मेंबरशिप ट्रांसफर कर देगी, लेकिन उसे मार्क करेगी सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट में और सोसाइटी के आई रजिस्टर और जे रजिस्टर में एज, उदाहरण के तौर पे अनिल शर्मा ब्रैकेट में प्रोविजनल मेंबर, सोसाइटी के शेयर सर्टिफिकेट में अनिल शर्मा ब्रैकेट में प्रोविजनल मेंबर, सोसाइटी के मेंटेनेंस बिल में अनिल शर्मा ब्रैकेट में प्रोविजनल मेंबर। ये क्यों करोगे आप? ताकि सोसाइटी को भी ये ध्यान रहे, 10 साल के बाद में ये पता नहीं चलता है कि वो एक्चुअली प्रोविजनल मेंबर था, भूल जाते हैं, 2-3 कमेटी भी बदली हो जाती है, 10-15 साल के बाद ये पता नहीं चलता है कि वो प्रोविजनल मेंबर था या ओरिजिनल टाइटल ओनर था। तो उस समय की जो मैनेजिंग कमेटी बोले कि हाँ अनिल शर्मा के नाम पे ये बिल आ रहा है आई रजिस्टर में, तो इसे सेल एनओसी भी दे सकते हैं। लेकिन जब प्रोविजनल मेंबर का वर्ड डालोगे तो एवरीबॉडी विल बी अलर्ट, सब जन होशियार रहेंगे कि आप इसे फ्लैट सेल करने के लिए नहीं देना है, इस प्रोविजनल मेंबर के नाम पे कोई भी एनओसी नहीं देना, ना पासपोर्ट के लिए देना है, ना गैस मीटर चेंज करने के लिए देना है, ना प्रॉपर्टी टैक्स का बिल चेंज करने के लिए देना है, ना इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल चेंज करने के लिए देना। ये सारे चीज ध्यान रखना है, इसीलिए ये प्रोविजनल मेंबर का कंडीशन डालना जरूरी है। इस पर्टिकुलर एक्ट में एक बहुत पर्टिकुलर फनी चीज लिया हुआ, बहुत मजाक की चीज लिया हुआ है। मतलब 154(b)(13 बोलता है कि मेंबरशिप नॉमिनेट किया हुआ है आपने उस व्यक्ति अनिल शर्मा को, तो उसके नाम पे मेंबरशिप ट्रांसफर कर दो वगैरह वगैरह। लेकिन अगर डिसीज्ड पर्सन ने उस व्यक्ति को नॉमिनेट किया ही नहीं है, किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं किया है, मानो उदाहरण के तौर पे, तो कोई भी एक व्यक्ति आता है, सुरेश नाम का एक व्यक्ति आता है सोसाइटी में, बोलता है कि भाई मैं उस व्यक्ति का जो गुजर गया है, जिसका फ्लैट है, मैं उस व्यक्ति का सो एंड सो रिश्तेदार हूँ, मैं उनका लड़का हूँ, लड़की हूँ, चाचा, मामा, भांजा, कुछ भी बोल सकता है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में 154(b)(13 में ये बताया गया है, मैं रीड करता हूँ अंग्रेजी में और फिर बाद में हिंदी में अनुवाद भी कर देता हूँ। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ नो पर्सन हैज बीन नॉमिनेटेड, ये कानून में लिखा हुआ, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में लिखा है, इट इज ए फनी सेक्शन। सोसाइटी, if no person has been nominated, society shall admit such person as provisional member as may appear to the committee to be the legal heir or legal representative of the deceased in the manner as may be prescribed। मतलब
ये पूरा पावर मैनेजिंग कमेटी को दे दिया हुआ है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि वो जो सुरेश राव है, नॉमिनेशन कोई भी नहीं, 2-4 साल निकल गए सोसाइटी में, और सुरेश राव आके क्लेम करता है कि साहब मैं इसका ये हूँ, तो सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी को अगर ये लगता है कि भाई ये उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या ये उसका वारसदार या लीगल हायर हो सकता है, तो ये नॉमिनेशन नॉमिनी जो प्रोविजनल मेंबरशिप है वो उसको सोसाइटी उस व्यक्ति को ग्रांट करने का अधिकार सोसाइटी को मैनेजिंग कमेटी को दे दिया हुआ इस पर्टिकुलर सेक्शन में. So you have to be very careful when you do this particular thing. So it is always and highly recommended कि अपना दो चीज आप पहले तो बना लो. जैसे मेंबरशिप आपको ग्रांट होती है सोसाइटी की, शेयर सर्टिफिकेट एंडोर्स हो जाता है, शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी आगे पीछे की और अपना नॉमिनेशन फॉर्म नंबर 14 तुरंत लिख के सोसाइटी को दे दो. आप हर महीने चेंज भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, ताकि ये वाली जो नौबत है, ये जो फनी प्रोविजन है 154(b)(13) का, सोसाइटी नहीं कर पाए. आपको ज्ञान है कि मोस्ट ऑफ द सोसाइटी मैनेजिंग कमिटीज दे बिहेव इन ए वेरी एरेटिक मैनर. एरेटिक मैनर मीन्स अपने मन मर्जी का करने का लगे रहते हैं. फिर वो ये कहेंगे कि भाई कानून में तो हमको अधिकार था, तो वो व्यक्ति को मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि वो नीचे जो दूध वाला बैठता है या पान वाला बैठता है, वो उसके पास हमारे डिसीज मेंबर हमेशा लगे रहते थे, वो उसके घर में आते जाते रहते थे, उनका खाना पीना चलता था, तो हमें लगा कि भाई वो उसका सगा भाई होगा. तो हमें सिर्फ हमारे ख्यालात के अनुसार, मैनेजिंग कमेटी के ख्यालात के अनुसार उसको वो प्रोविजनल मेंबरशिप ट्रांसफर कर सकते. प्रोविजनल मैनेज मेंबर मतलब अगर आप किसी कारण से आप प्रोविजनल मेंबर बनते हो, फ्लैट ओनर ने आपको कभी नॉमिनेट कर दिया और आप प्रोविजनल मेंबर बन जाते हो, तो प्रोविजनल मेंबर का लायबिलिटी क्या क्या है, दायित्व क्या क्या है, उसकी जवाबदारी क्या क्या है. प्रोविजनल मेंबर को एडमिट करने के बाद में ये नॉमिनी जो है, मानो अनिल शर्मा, तो अनिल शर्मा बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर 100% लायबिलिटीज, लेना देना कर्जा ये वो जो भी कुछ है उस डिसीज मेंबर का जो गुजर गया. So after admission, provisional member means the nominee becomes liable for 100% liabilities of original deceased member, which उसका liability का क्या क्या चीज हो सकती है. सोसाइटी का आउटस्टैंडिंग ड्यूज है, मानो वो आदमी गुजर गया और उसका सोसाइटी का आउटस्टैंडिंग ड्यूज है 20 लाख रुपए बाकी है, तो अब इसको भरने का दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी किसकी है, वो ये प्रोविजनल मेंबर का है. अगर उसने एज ए नॉमिनी प्रोविजनल मेंबर क्लेम किया, नॉमिनी हो सकता है उसका सगा लड़का भी हो, लेकिन अगर वो नॉमिनी फॉर्म के दम पर, नॉमिनी फॉर्म के बेस पे वो क्लेम करता है मेंबरशिप, अगर वो विल के दम पे करता है, वसीयत के दम पे करता है, तो वो चीज टोटली अलग है. आज हम सिर्फ नॉमिनी के बारे में बात कर रहे हैं. तो कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग द लीगल हायर अगर वो क्लेम करता है प्रोविजनल मेंबरशिप बेस्ड ऑन द नॉमिनेशन फॉर्म, तो जो गुजरा हुआ व्यक्ति है, जो गुजर गया है, जो डिसीज है, उसकी कोई भी लायबिलिटी हो, प्राइवेट लायबिलिटी हो, गवर्नमेंट लायबिलिटी हो, बैंक का लोन हो, सोसाइटी का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो, गवर्नमेंट के ड्यूज हो, गवर्नमेंट का ड्यूज इंक्लूडिंग जीएसटी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, कुछ भी ले लो, बीएमसी का प्रॉपर्टी टैक्स भी. तो अगर प्रोविजनल मेंबर क्लेम करता है कि भाई मैं फ्लैट में मैं प्रोविजनल मेंबर हूं, तो उसके जितनी भी लायबिलिटीज है गुजरे हुए व्यक्ति की, मरे हुए व्यक्ति की, वो प्रोविजनल मेंबर के गले पे आ जाती है. जैसे मैंने बताया, उसका बैंक लोन है, प्रोविजनल मेंबर के गले पे आ जाएगा. प्राइवेट लोन है, मतलब अनन फनन लोगों से 10-15 लाख 50 लाख 2-4 करोड़ ले लिया, वो भी उसकी लायबिलिटी आ जाती है. तो अगर प्रोविजनल मेंबर ये सोच के खुश होता है कि वाह मुझे तो फ्लैट मिल गया करके, ओके फाइन, अगर मिल गया है तो कोर्ट की डिग्री लेके आओ, फ्लैट को क्लेम कर लो, लेकिन मरे हुए व्यक्ति का सारा लायबिलिटीज का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका ही होगा. एक बहुत फनी चीज और है कि इवन दो यू आर ए नॉमिनी, इवन दो यू आर ए प्रोविजनल मेंबर, यू डिराइव नो राइट, नो लीगल राइट टू स्टे इन द फ्लैट ऑफ द डिसीज. कानून ये चीज कहीं पर भी प्रिस्क्राइब नहीं करता है. कानून बोलता है ठीक है, प्रोविजनल मेंबर बने हो,
ये कर लो वो कर लो। प्रोविजनल मेंबर हम आपको इसके लिए बना रहे हैं ताकि सोसाइटी का जो लेन देन है, लेना देना जो है, सोसाइटी का मेंटेनेंस बिल का देना जो है, वो किसके ऊपर हम फिक्स करना चाहेंगे। तो कानून ने एक प्रोविजन बना दिया कि चलो भाई नॉमिनी को अटकाओ, एक तो आदमी को लेके आओ जो रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर नॉमिनी सामने से खुश होके आता और बोलता मैं तो नॉमिनी हो गया, मैं तो फ्लैट का ओनर हो गया वगैरह वगैरह, पर कानून में ये कोई भी प्रोविजन नहीं है कि नॉमिनी को मरे हुए आदमी के फ्लैट में रहने का अधिकार है। जैसे उदाहरण के तौर पे नॉमिनी बगल का नीचे जो खड़ा है ना पान वाला, जो आप जिससे आप कभी कभी पान वगैरह लेते हो, पान खाने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है कि वो जो अनिल शर्मा है ओनर ऑफ द फ्लैट, वो पान वाले के पास जा जाके 2500 साल से जा रहा है, उसका दिल का रिश्ता बन गया, वो कोई भी उसको नॉमिनी कर दिया उसने, कुछ कारण से लोग बहक भी जाते हैं नॉमिनी करते हैं। लेकिन अनिल शर्मा की खुद की बीवी भी है, खुद के बच्चे भी हैं, सब कोई है जिनका पहले अधिकार हिंदू सक्सेशन एक्ट में या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, उनका पहला अधिकार है उस फ्लैट में रहने का। उनको उस फ्लैट से बाहर कोई नहीं निकाल सकता। हेंस अनिल शर्मा के गुजरने के बाद में अगर वो पान वाला आके सोसाइटी में बोलता है कि भाई ये देखो ये नॉमिनेशन का फॉर्म है, तो मेरे फेवर में नॉमिनी, मुझे नॉमिनी बनाओ, सोसाइटी उसको प्रोविजनल मेंबर बना देती है। अब वो प्रोविजनल मेंबर जाता है उस फ्लैट नंबर 101 में और उसकी बीवी और बच्चे को बोलता है चलो भाई बाहर निकलो, मैं नॉमिनी हूँ इस फ्लैट का। ऐसा नहीं हो सकता, वो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि कानून में उस प्रकार का अधिकार दिया नहीं। तो नॉमिनी हैज नो राइट टू स्टे इन द फ्लैट ऑफ डिसीज मेंबर। मरे हुए व्यक्ति के फ्लैट में रहने का अधिकार नॉमिनी को बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, सोसाइटी नॉमिनी मेंबर को प्रोविजनल मेंबर देने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेंटेनेंस ड्यूज बाकी है क्या, भर दो, फिर हम आपको दे देंगे प्रोविजनल मेंबरशिप। भाई वो ओरिजिनल मेंबर ने फ्लैट तो मॉर्गेज कर रखा था और सोसाइटी ने अंडरटेकिंग दिया है मॉर्गेजी को, बैंक को, कि भाई लेंडर को, कि हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इस चीज के बगैर। तो अभी इन प्रोविजनल मेंबर आ गया और मेंबर का मॉर्गेज बाकी है, तो क्या सोसाइटी नॉमिनी को ट्रांसफर कर सकती है? नहीं सर, वो नहीं कर सकती। सो इफ द ओरिजिनल मेंबर वाज डिस्क्वालिफाइड और debarred or faced charges of misappropriation of funds, then the provisional member also becomes liable and also becomes debarred from contesting election। अगर ओरिजिनल मेंबर ये सब चीजों में डीबार्ड है, मानो सेक्शन 75 में उसको डीबार कर दिया है 5 साल के लिए, है ना। सेक्शन 75 में प्रोविजन है, सेक्शन 76 में भी है, सेक्शन 82 में भी है, 88 में भी है, कुछ कुछ सेक्शन में प्रोविजन है कि भाई आपको वो डीबार कर सकता है डीआर के ऑर्डर के अनुसार। तो अगर वो ओरिजिनल मेंबर डीबार्ड है अनिल शर्मा, तो उसका नॉमिनी यानी प्रोविजनल मेंबर भी डीबार्ड होता है, बिकॉज प्रोविजनल मेंबर इज ओनली ए ट्रस्टी, उसका प्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि को अपना खुद का अधिकार या राइट्स नहीं होता, उसका राइट्स और अधिकार उस ओरिजिनल मेंबर के दम पे आपको मिलता है। तो ओरिजिनल मेंबर डीबार्ड है, आप कॉन्टेस्ट भी नहीं कर सकते हो, एमसी मेंबर भी नहीं बन सकते और कोऑप्टेड भी नहीं हो सकते हो। अगर ओरिजिनल मेंबर का मॉर्गेज है तो भी आपको प्रोविजनल मेंबरशिप नहीं मिल सकता, आपको उस बैंक से एनओसी लेके आना। और बैंक अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, मेरा पर्सनल तजुर्बा है, इतने सोसाइटीज को देखता हूं मैं, कोई भी बैंक आपको प्रोविजनल मेंबर के लिए एनओसी नहीं देगा, बोलेगा पहले हमारा ड्यूज क्लियर करो, फिर प्रोविजनल मेंबर बनो या नॉमिनी मेंबर बनो या ये मेंबर बनो, वो मेंबर बनो, कुछ भी करो, पहले मेरा पैसे दे दो, फिर आगे की बात होगी। जैसे फातिमा मैम ने बताया, एनओसी कैन बी गिवन ओनली टू फ्लैट ओनर। अनिल शर्मा फ्लैट ओनर था, उसके पास सेल डीड था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर वो फ्लैट मालिक था, इसके लिए उसको कोई भी प्रकार का एनओसी दिया जा सकता। पर प्रोविजनल मेंबर के नाम पे उस फ्लैट का सेल डीड नहीं है, उसके पास में उस फ्लैट का मालिकाना हक नहीं है, इसके लिए उसे कोई भी प्रकार का एनओसी नहीं दिया जा सकता। तो ये जुलाई 2019 के कानून का थोड़ा बहुत चेंजेस था, जो फातिमा मैडम ने बताया वो उसके पहले का सारा बताया, और जो चेंजेस हैं हमने अभी उसका
आपको डीपली खुलासा किया। यस, आई डिड नॉट स्टॉप यू एट दैट मोमेंट बिकॉज you were referring to the old provisions of the act as we had discussed. So the new provision had to be separately mentioned so that Yes, our sir. friends know कि पुराना ये कानून था, क्योंकि काफी लोग पुराने कानून से अभी भी चले जा रहे जुड़े हैं। हुए वो यही सोचते हैं कि भाई मैं नॉमिनी हूं तो मैं फ्लैट का मालिक हो गया, जी सर। है ना। तो वो डिफरेंशिएट करना जरूरी था। इसके लिए आपने वो पुराना बताया, मैंने आपको टोका भी नहीं, और हमने जैसे डिसाइड किया था कि आई विल एक्सप्लेन द न्यू प्रोविजंस सो दैट दोनों में डिफरेंशिएट क्लियर कट हो सके।